तो BSNL का पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रख के BSNL कंपनी को मोबाइल लॉन्च करने के लिए नहीं दिया। ये प्राइवेट वालों ने पहले लॉन्च किया, बाद में ही BSNL लॉन्च किया। तो इसी से मतलब किसी भी तरीके से ये केन प्रकरण सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचाओ और प्राइवेटाइजेशन करो, प्राइवेट है वो तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की नीतियाँ होती है उसको सपोर्ट करेगी। आजकल क्या हुआ, पॉलिसी ओनली इट इज द एंटी PSU पॉलिसी एंड द प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी। They do not want any PSU to flourish in India. Not pro public, only pro corporate. Pro corporate only. नमस्कार। जब सरकार किसी बात का मन बना लेती है तो उसको खत्म करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए नए नए हथकंडे, नई नई चीजें खोज ही लेती है। ताज़ा घटनाक्रम PSUs पर अटैक तो हमने सुने थे, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम ऐसा है कि जो PSUs का एक बड़ा ब्रांड था BSNL, जिसको कहा जाता था कि संचार क्रांति के लिए भारत में पहले उपक्रमों में से एक था, उसको सफ़ेद हाथी बनाने की कयावत शुरू हो गई है। और किस तरीके से उसको खींचकर किया जा रहा है कि वो इस तरह से पिछड़ जाए रेस में, टेक्नोलॉजी की रेस में, कि अंत में सरकार ये कहे कि ये तो घाटे की कंपनी है, ये तो सफ़ेद हाथी है, ये तो सरकार को घाटा दे रही है, उसको जस्टिफाई करे, उसको बेचने के लिए जस्टिफिकेशन करे और फिर उसको औने पौने दाम पर जनता की गाड़ी कमाई की बनाई हुई कंपनी को औने पौने दाम पर बेच दे प्राइवेट कंपनियों को। ये जो घालमेल चल रहा है, इसके विरोध में BSNL एम्प्लॉय यूनियन के कर्मचारियों ने कमर कस ली है और जंतर मंतर पर आकर अपना विरोध दिखा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं सर, इज BSNL is going to be a white elephant? Yes, definitely it is a vital company as far as the people is concerned, because it is extending the communication service at the affordable rates to the people. Once BSNL is closed, these private companies will loot the people like anything. That is going to happen. That is what this government wants to do. Is there the government have two faces? Is there policy lapse or government? It's a government policy. It is the government policy only. It is the anti PSU policy and the pro corporate policy. They do not want any PSU to flourish in India. Not pro public, only pro corporate. Pro corporate only. Okay. That it is part of the neoliberal policy being pursued by this government. One by one, all PSUs sailed to the. Yes, they are Tata already, Indian Airlines already taken up. Already taken up. And this Modi government wants to hand over this BSNL to Adani or Ambani. That is what they are going to do. That is why we are resisting, because this is the people's company. This is a public company. This is a public limited company, and this is for the people, and this is for the not only for the employees. We are fighting for three reasons. There are some shareholders also there. Yeah, we are all the stakeholders. People are also the stakeholders of the BSNL. So we want to protect the BSNL. We want to protect the employees, and we also want to protect the country, because one by one these PSUs are being sold out without getting any money. They throw away money they are giving away. In the name of National Motorization Pipeline, all the assets of the country is being given to the corporates. What is the motive behind such kind of, I can say, conspiracy? It's a conspiracy to the public, I can say. It is an international conspiracy behind this. And Modi government is surrendering this What country. kind of pressure have Modi government? What kind of pressure? There is some pressure or? Yeah, definitely there is pressure from foreign countries, particularly from America. And such imperialist forces are pressurizing India to privatize all these PSUs and hand over these national assets to the corporations. What do you think that the pro-American should go to the capitalization, because our Russia's... No, we had a very vibrant mixed economy here. Okay. Now that is being lost. Okay. That is It goes to one-sided. It has gone completely pro-corporate. And this is because of this policy. You are saying you are not anti-privatization but pro-corporate or
See, in the early stages of India, after independence, we are having a mixed मिक्सर economy. यू सपोर्ट मिक्सर We were having these private companies. We were having PSUs also. When the private companies were not able to start higher wherever this infrastructure is needed, more money to be invested. But only it was in गवर्नमेंट सेक्टर इट वाज स्टार्टेड। सर क्या लगता है आपको, क्या देश को ठेके पे चलाने की कोशिश हो रही है? जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर है। कल तक एम्प्लॉयज़ थे, सरकार में थे तो उनके कुछ अधिकार होते थे, हक होते थे, अच्छी सैलरीज होती थी। जब ठेके पे लगेंगे तो जब चाहे निकाल दिया। अभी 4 लेबर कोड आपको पता ही है आए हैं, तो किस तरह से उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है सरकार, जनता के हित में नहीं कर रही। लेकिन क्या आप लड़ पाओगे, क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं वो? नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम लगातार लड़ रहे हैं। आप देखिए, जब भी बाढ़ आई या भूकंप आया, देखिए आप चेन्नई में, केरला में, जब भी बाढ़ और भूकंप आया वहाँ केवल BSNL आके काम किया। ये प्राइवेट वाले सब अपनी दुकान बंद करके घर पे बैठे थे, उस टाइम पे BSNL आके काम किया। तो BSNL की सर्विस बचाने के लिए और ये लोग जो पब्लिक हमारे ऊपर जो भरोसा रखे हैं, उनका भरोसा बचाने के लिए हमारा मुख्य मुद्दा है 4G और 5G दीजिए। देखिए ऑलरेडी 4G तो देखिए तो 4-5 साल हो गए प्राइवेट वालों को, अभी 5G लॉन्च कर रहे हैं, हमारे को अभी 4G ही नहीं दे रहे। क्या लगता है सर, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार जो प्राइवेट कंपनियों का जो फर्स्ट मोटो होता है प्रॉफिट होता है, और सरकार का फर्स्ट मोटो होता है पब्लिक वेलफेयर। तो जब सरकारी कंपनी है तो पब्लिक वेलफेयर की ज़्यादा बात करेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज है जब चाहे दाम बढ़ा देती हैं। अभी जियो सस्ता करके लॉन्च किया और देखिए एक झटके में 3 महीने का जो रिचार्ज है, 2 महीने का रिचार्ज है, 25 से लेके 50% तक बढ़ा दिया, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्या लगता है कि जब पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो पब्लिक पर ही बोझ पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो BSNL जब नहीं रहेगा तो तब ये पब्लिक को पता चलेगी कि सरकार का उद्देश्य क्या था। क्योंकि अभी देखिए, अभी हाल ही में एकदम इसके वोडाफोन और एयरटेल के दाम बढ़ा दिए गए without any notification. They have raised their this tariffs. So we are not so. BSNL is ट्राई क्या कर रहा है? What is the significance of ट्राई? अरे यार, हर जगह, हाँ, ट्राई तो पपेट है, वो तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की नीतियाँ होती है उसको सपोर्ट करेगी। आजकल क्या हुआ, BSNL के पास जो फाइबर है, आजकल फाइबर में चलता है डेटा, हमारे पास 7.5 लाख किलोमीटर फाइबर है। ये प्राइवेट वालों का नज़र सिर्फ उसके ऊपर है, और हमारा जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपका हमारे जितने भी रिसोर्सेज और जो हमारे जगह है, लैंड और हमारे बिल्डिंग्स और सब प्रोमिनेंट जगह पे है, ये प्राइवेट वालों की नज़र सब उसके ऊपर है। एक सवाल और पूछूंगा मैं, पिछले कुछ सालों पहले ऐसा था कि लगातार जो उपभोक्ता थे, जो कंज्यूमर थे, उनके फ़ोन पर अलग अलग तरह के चार्ज आ जाते थे कि कॉलर ट्यून का चार्ज लग गया, फलानी सर्विस लग गई, और बिगर कहे कंपनियां लगा देती थी और उसके पैसे कट जाते थे। कॉल ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा था उस समय, प्राइवेट कंपनियों ने इतनी लूट मचा रखी थी, तब उन पर लगाम लगाने की कोशिश हुई, ट्राई ने भी किया। क्या लगता है अगर कोई सरकारी कंपनी नहीं रहेगी तो प्राइवेट कंपनियां मनमानी करेंगी? जरूर मनमानी करेंगे। जब सरकारी कंपनी नहीं रहेगी तो मनमानी तो चलेगी। यही तो ये सरकार चाहती है कि अभी, क्योंकि इनका जो भी एक हिस्सा है वो तो सरकार को जाएगा, तो इसीलिए ये सरकार को जाएगा। कहने का मतलब सीधा आप कह रहे हो कि सरकार की मिली भगत है इन सब चीजों में? हाँ, मिली भगत है, पक्की मिली भगत है। तो आप कैसे इसको आगे ले जाओगे आंदोलन को? इस आंदोलन को तो हम लगातार, जैसे ही जब बताया कि हम 2000 से लड़ रहे हैं, जब हम DOT से BSNL कंपनी में कन्वर्ट हुए, तब से हमारी लड़ाई लगातार चल रही है। क्योंकि हमारे को 3G देने में भी सरकार डिले किया प्राइवेट वालों को। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब मोबाइल लॉन्च किया तो BSNL का पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रख के BSNL कंपनी को मोबाइल लॉन्च करने के लिए नहीं दिया। ये प्राइवेट वालों ने पहले लॉन्च किया, बाद में ही BSNL लॉन्च किया। तो इसी से मतलब किसी भी तरीके से ये केन पकड़ें, सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचाओ और प्राइवेटाइजेशन करो, प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाओ। सर देखो, इसमें क्या है, जो पब्लिक का भरोसा है वो BSNL पे है। जैसा BSNL मोबाइल क्षेत्र में लॉन्च हुआ, हमारे पास लाइन लगी थी, हमको पुलिस बुलाना पड़ता था सिम बांटने के लिए।
बाद में क्या हुआ, हमको जो इक्विपमेंट चाहिए था उस पर रोक लाया। हमारा टेंडर जब राजा था हमारा कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उसने हमारा टेंडर कैंसिल किया। उसके लिए भी बीएसएनएल के सभी सबसे साजिश चल रहा है। साजिश चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए सब मिले हुए सब साफ कह रहे हो। सब मिले। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, ऐसा नारा भी लगता था। तो कुछ पार्टियां नारा लगा तो उसके लिए भी हमने आंदोलन करके वो जो टेंडर कैंसिल हुआ था उसमें से कुछ लाइन हमको वापस मिला। अब इन्होंने देखा कि बीएसएनएल अगर आ गया 4G में तो ये इनके जो भाई लोग हैं अडानी अंबानी, इनका नुकसान होगा। देखिए कितनी सच्ची और सीधी बात कही है कि अगर बीएसएनएल दिवालिया हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो सीधा सीधा गिद्ध की नज़र, जो गिद्ध होता है वो देखता है मरे हुए जीवों को। जब कोई कंपनी मरती है तो उद्योगपति गिद्ध की तरह उस पर निगाह लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर बहुत रिसोर्सेज हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल का जाल है, लैंड्स हैं, टावर्स हैं, इतना सारा है। घाटे में कर दो एक बार, मैनेजमेंट खराब कर दो, हो गई घाटे में। सरकार कहेगी देखो जी घाटे में चल रही है। और कहते हैं ना कि जो नवरत्न थे हमारे, उनमें नवरत्नों के साथ क्या हुआ या क्या हो रहा है, ये सब वही है कि पीएसयूज को बर्बाद करो और सीधा सीधा बर्बाद करने के बाद जनता को बोलो ये तो हमारे ऊपर बोझ है, और एम्प्लॉयज़ की छटनी करो और बेच दो। रेलवे के साथ भी यही होने वाला है। बीएसएनएल इसका फेस कर रही है और कंपनियां फेस कर चुकी हैं। एयर इंडिया का तो काम तमाम हो ही चुका है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद जय भारत।